नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं रोशन टीवी। रोशन टीवी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। खबरनामे का आगाज करते हैं हदीस मुबारका से। إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين۔ جب رمضان آیا کرتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو قید کر لیا جاتا ہے، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ آغاز کرنے سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کے اہم سرخیوں پر۔ عازمین حج 2022 کے لیے ڈسٹرکٹ حج سوسائٹی نظام آباد کی جانب سے خدمات کا آغاز، عازمین حج سے استفادے کی اپیل۔ سی ایم آر ایف غربا کے لیے ایک نعمت، آرمو میں ملے وہ پی یو سی کمیٹی چیئرمین جیون ریڈی کے ہاتھوں استفادہ کنندگان میں کیے گئے چیکس کی تقسیم۔ چوروں کی ہمت میں اضافہ، ایک ہی وقت مبکال منڈل میں 6 گھروں میں چوری، 6 لاکھ نقد، 22 تولے سونا، 10 تولے چاندی لے کر چور ہوئے فرار، محکمہ پولیس کی جانب سے تحقیقات کا آغاز۔ آر او ایف آر قوانین پر عمل کرتے ہوئے قبائلی کسانوں کے مسائل کو حل کیا جائے، ضلع کلکٹر نارائن ریڈی نے عہدیداروں کو دی ہدایت۔ درگاہ حضرت سعد اللہ حسینی رحمۃ اللہ علیہ بڑا پہاڑ انتظامات کے لیے ٹینڈرز کا پھر اعلان۔ تلنگانہ اوپن اسکول میں داخلے کی 15 نومبر آخری تاریخ، طلباء سے استفادے کی اپیل۔ اب بڑھتے خبروں کی تفصیل کی جانب۔ آرمو حلقے کے دیگر موضوعات سے تعلق رکھنے والے مستحقین کو چیف منسٹر ریلیف فنڈ سے منظور کردہ 80 سی ایم آر ایف چیکس کی پی یو سی کمیٹی چیئرمین آرمو ایم ایل اے جیون ریڈی نے استفادہ کنندگان میں فراہمی عمل میں لائی۔ آرمو رکن اسمبلی پی یو سی کمیٹی چیئرمین جیون ریڈی نے حلقے سے وابستہ دیگر موضوعات سے تعلق رکھنے والے مستحقین کو چیف منسٹر ریلیف فنڈ سے منظور کردہ سی ایم آر ایف چیکس کی استفادہ کنندگان میں فراہمی عمل میں لائی گئی۔ اس موقع پر پی یو سی کمیٹی چیئرمین آرمو ایم ایل اے جیون ریڈی نے حلقے سے منسلک عوامی نمائندے و قائدین اور کارکنان سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اگر کوئی ناساز طبیعت کے باعث شریک ہاسپٹل ہو کر علاج و معالجہ حاصل کرنے والے افراد کو 5000 روپے رقم امداد دی جائے اور اس سے زائد مرض کے متعلق بل ہو تو راست طور پر ایم ایل اے کیمپ دفتر پر درخواست داخل کرنے کا اظہار کیا۔ పాండమిక్ సిచ్యువేషన్లో ఎవరైతే హాస్పిటల్లో అనారోగ్యానికి గురై కరోనా వచ్చి ఇతర రోగాలకు గురైన వారికి దయచేసి వారి యొక్క బిల్లులు అది 5,000 అయినా సరే 10,000 అయినా సరే 5 లక్షల వరకు అయినా సరే 10 లక్షలైనా సరే ఎంత బిల్లులు ఉన్నా కానీ మా ఆర్మూర్లోని క్యాంప్ ఆఫీస్లో శ్రీకాంత్ అని పిఏ ఉన్నాడు, అక్కడికి తీసుకొచ్చినా సరే, లేదంటే మా సుమంత్ పిఏ ఉన్నారు వారి దగ్గర తీసుకొచ్చినా సరే, రాజేష్ ఉన్నారు పిఆర్ఓ వారి దగ్గర తీసుకొచ్చినా సరే, ఎవరి దగ్గరికి తీసుకొచ్చినా సరే ఖచ్చితంగా వారికి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారి చేత సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్ ద్వారా ఇప్పిస్తా కాబట్టి 5,000 10,000 ఉన్నాయని అనుకోకండి, 3,000 రూపాయలు ఉన్నా 5,000 రూపాయలు ఉన్నా కానీ ప్రభుత్వం తరఫున వారికి ఆర్థిక సాయం చేయడానికి మేము సిద్ధంగా ఉన్నాం కాబట్టి आर ओ एफ आर कानून को यकीनी तौर पर रूबे अमल में लाने का कलेक्टर नारायण रेड्डी ने मुनक़िदा प्रगति भवन इजलास में किया इजहार। निजामाबाद कलेक्टर नारायण रेड्डी ने कलेक्ट्रेट के प्रगति भवन में सियासी कायदीन व महकमे जंगलात व रिवेन्यू अहदेदारों के साथ इजलास मुनक़िद करते हुए कहा कि 2006 का आर ओ एफ आर कानून को रूबे अमल में लाते हुए इससे मुताल्लिक़ा क़वायद को 2007 में लाने का इजहार करते हुए बताया कि 2008 ta 9 साल में जिले के 800 अफराद को पट्टाजात हवाले किए गए और मज़ीद कुछ अफराद को इससे मुताल्लिक़ा राज़ियात के मामले में महकमे जंगलात व रिवेन्यू के दरमियान तनाज़ा होने का इजहार किया। और इन्होंने मज़ीद कहा कि जिले में 13,68,723 एकड़ अराज़ियात पर 5,078 अफराद जो कि SC/ST व दीगर की जानिब से गैर कानूनी तौर पर काबिज होकर काश्त करें अराजी पर महकमे जंगलात व रिवेन्यू से मुताल्लिक़ा तनाज़ा होने का इजहार किया। కొన్ని విషయాలు మీతో డిస్కస్ చేసుకుంటూ మీ యొక్క సూచనలు సలహాలు తీసుకొని ఈ యొక్క
ROFR పట్టాస్ అనే విషయం పైన ఒక కాంక్రీట్ ప్లాన్తో జిల్లాలో ముందుకు వెళ్దామన్న ఉద్దేశంతోన మనం ఈ యొక్క సమావేశాన్ని నిర్వహించుకుంటున్నాం. ఈ సమావేశంలో తప్పకుండా అన్ని పార్టీల బాధ్యులు ఎవరైతే ఇక్కడికి వచ్చారో వారి తరఫు నుంచి కూడా కాంక్రీట్ సజెషన్స్ కోరుకుంటూ, ముఖ్యంగా ప్రభుత్వ ఉద్దేశం మనందరికీ తెలిసిందే, 2006లో మనకి ROFR చట్టం రావడం జరిగింది. ఈ ROFR చట్టం ప్రకారంగా మనకు ఫారెస్ట్ ల్యాండ్లో ఎవరైతే కల్టివేషన్ చేస్తున్నారో తరతరాలు కొంతమంది చేస్తారు, కొంతమంది ఆరోగ్యం చేస్తున్నారు. वजीर इमारत और शोरा विमला प्रशांत रेड्डी की नुमाइंदगी पर भीमगल मंडल के मुख्तलिफ देहातों में CMRF चेक्स की तकसीम। जनाब विमला प्रशांत रेड्डी वजीर हाउसिंग और R&B की नुमाइंदगी पर भीमगल मंडल के मुख्तलिफ देहातों की मुस्तहिक अफराद में CM रिलीफ फंड के मंजूर करदा चेक्स की तकसीम अमल में लाई गई। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से मोहम्मद अब्दुल मोइज, जिले परिषद कोऑप्शन मेंबर दोमकुंटी नरसैया, सदर TRS पार्टी भीमगल, MPP मैश कविता गंगाधर और MPTC और सरपंच वगैरह ने शिरकत करते हुए चेक्स की तकसीम अमल में लाई। इस मौके पर चेनगल गाँव के लिम्बना को 22,000 रुपए, लक्ष्मी को 35,000 रुपए, जबकि बड़ा भीमगल गांव के गंगलू को 22,500 रुपए, मेंडूरा गांव के बी वेंकटवा को 70,000 रुपए, एस पोचयो को 25,000 रुपए, गंगापुर गांव के पोचा को 25,000 रुपए और अमृता को 22,000 रुपए, बाबापुर गांव में रशीदा बेगम को 70,000 रुपए, अमितुर रहमान को 25,000 रुपए, राहत नगर गाँव के सुरेश को 22,500 रुपए के चेक्स हवाले किए गए। जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम व उर्स शरीफ हजरत ख्वाजा नायब रसूल अम्मा जान के मौके पर शहर के इलाके आटो नगर में संदल व लंगर व महफिल समा का इनेकाद, कसीर तादाद में अवाम ने की शिरकत। जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वो उर्स मुबारक जश्न हजरत ख्वाजा नायब रसूल अम्मा जान के मौके पर शहर के इलाके आटो नगर नजद मस्जिद गौसिया महफिल समा लंगर का एहतमाम किया गया, जिसमें बहसियत मेहमान खुसूसी सज्जदा नशीन हजरत मोहम्मद यूनुस मिर्जा चिश्ती साहब, जेरी सरपरस्ती हजरत शेख हुसैन चिश्ती अल खादरी साहब, खलीफा हजरत शेर अली शाह चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, जेरे सदारत सैयद मुनीरुद्दीन अली शाह चिश्ती अल खादरी साहब, सैयद वाजिदुद्दीन अली शाह चिश्ती अल खादरी साहब मुनक़िद हुआ। इस महफिल समा में सलीम अरमान इफ्तिखारी खव्वाल ने महफिल समा में अपनी खव्वालियों के जरिए समा बांधा, जिसमें अवाम की कसीर तादाद ने शिरकत करते हुए फैजियाब हुए। इस मौके पर शेख मोहम्मद मुबीन जलाल, शेख इमरान, शेख मोहसिन, मोहम्मद अब्दुल खालिद व दीगर ने बढ़ चढ़ कर इंतजामात का एहतमाम। दोमकुंडा मंडल में जमतुलमा हिंद की इंतखाबी नशिस्त हुसैन बिन अब्दुल रहमान दोमकुंडा मंडल सदर मुंतखब। मोहम्मद फेरोजुद्दीन प्रेस सेक्रेटरी की इत्तला के मुताबिक हजरत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब दामद बरकातहुम सदर जमतुलमा हिंद की हिदायत पर हजरत मौलाना मुफ्ती ग़ियासुद्दीन साहब खासमी की सदारत में रियासत तेलंगाना के तमाम अजला के मंडलों में जमतुलमा हिंद के यूनिटों की तश्कील अमल में लाई जा रही। इंतखाब से पहले मेंबर साजी का मरहला अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो चुका है। हजरत हाफिज मोहम्मद फहीमुद्दीन मुनीरी हफ्ज़हुल्लाह सदर जमतुलमा कामरेड्डी व नायब सदर जमतुलमा सूबा तेलंगाना व आंध्रा की क़यादत में दोमकुंडा मंडल की मस्जिद हलीमिया में दोमकुंडा मंडल से ताल्लुक़ रखने वाले जिम्मेदार अहबाब और सुदूर मसाजिद और आयमा मसाजिद ने इंतखाबी नशिस्त में शिरकत की। इस नशिस्त में जमतुलमा मंडल दोमकुंडा के इंतखाबात अमल में आए। चुनांचा हुसैन बिन अब्दुल रहमान साहब सदर, मोहम्मद आसिफ साहब सदर बीबीपेट जनरल सेक्रेटरी, जबकि सादुल्ला हुसैन साहब बहसियत मशीर, ऐसे ही नायबीन सुदूर में हाफिज मोहम्मद सरताज साहब सेक्रेटरी के तौर पर मौलाना कारी अजमत अली साहब व मंडल की हर देहात से एक एक फर्द का मेम्बरान के लिए हुस्न इंतखाब अमल में लाए। इस मौके से मौलाना नजीरुल हक साहब खासमी नायब सदर मंडल कामरेड्डी, मौलाना मंजूर आलम मुज़ाहिरी सदर मंडल कामरेड्डी, हाफिज मोहम्मद तकीउद्दीन मोहम्मद समीर मौजूद थे। हाफिज मोहम्मद अब्दुल रहमान साहब नायब सदर सिटीज जमतुलमा ग्रेटर हैदराबाद की दुआ पर नशिस्त का इख्तिताम अमल में लाया गया। आज़मीन हज के लिए खुशखबरी, हज 2022 ऑनलाइन दरख्वास्तों की वसूली। दफ्तर निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट हज सोसाइटी मुस्तैदपुरा पर ऑनलाइन की सहूलत। आज़मीन हज के लिए खुशखबरी है कि 21 नवंबर 2021 से हज 2022 के लिए
آن لائن درخواست داخل کرنے کا عمل شروع ہو چکا ہے۔ عازمین حج کی خدمت میں نظام آباد ڈسٹرکٹ حج سوسائٹی کے صدر مولانا سید عابد علی قاسمی و محمد حبیب احمد سابقہ رکن ریاستی حج کمیٹی کی جانب سے اپیل کی جاتی ہے کہ حج 2022 کے درخواست فارم کی خانہ پوری آن لائن کی سہولت 4 نومبر 2021 تا 31 جنوری 2022 تک دفتر نظام آباد ڈسٹرکٹ حج سوسائٹی نزد سمدانی دواخانہ مستعد پورہ نظام آباد پر صبح 11 بجے سے شام 5 بجے تک رہے گی۔ تمام عازمین حج 2022 سے گزارش کی جاتی ہے کہ اپنے پاسپورٹ، ماں فوٹوز، بینک اکاؤنٹ بک، آدھار کارڈ، پین کارڈ، ATM کارڈ، بلڈ گروپ کے ساتھ دفتر رضا پر تشریف لا کر حج فارم آن لائن کروا لیں۔ مزید معلومات کے لیے ویب سائٹ www.hajcommittee.government.in سے حاصل کر سکتے ہیں۔ فون نمبرات محمد حبیب احمد 9440037101، مولانا سید عابد قاسمی 9440502059، محمد افروز 9912433426 پر رابطہ پیدا کریں۔ اس موقع پر مولانا عابد قاسمی، احمد عبدالعظیم TRS اسٹیٹ سیکریٹری طارق انصاری، MIM ذکی الدین، مولانا احسان صاحب، محمد فضل و دیگر نے شرکت کی۔ کرونا بیماری کی وجہ سے بند تھا، اللہ کا فضل اور اللہ کا کرم ہوا کہ 2022 کے لیے حج کے فارم کے سلسلے میں خانہ پوری کی جا رہی ہے۔ نظام آباد ڈسٹرکٹ حج سوسائٹی کے آفس پر یہ عظیم الشان اجلاس منعقد ہوا ہے۔ اس سلسلے میں ہم عازمین اور عازمات کو اطلاع دیتے ہیں کہ حج 2022 کے لیے فارم کی خانہ پوری اور اس کے آن لائن کے لیے دفتر نظام آباد ڈسٹرکٹ حج سوسائٹی پر 1 نومبر سے لے کر 31 جنوری 2022 تک حج کا فارم بھرنے کی تاریخ متعین ہے، اور 31 جنوری 2022 یہ آخری تاریخ ہے۔ تو جو عازمین اور عازمات ہیں وہ اپنی تیاری کر اپنے فوٹوز ہے، اور اسی طرح پاسپورٹ ہے، اور اسی طرح بلڈ گروپ ہے، اور بینک اکاؤنٹ ہے، آدھار کارڈ ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے تیاری کر نظام آباد ڈسٹرکٹ حج سوسائٹی کے دفتر پر آ کر آن لائن جو ہے اپنے فارم کی خانہ پوری فرما لیں، آن لائن فارم کی خانہ پوری فرما لیں۔ اور ایک اہم بات، ہماری ڈسٹرکٹ حج سوسائٹی میں، نظام آباد ڈسٹرکٹ حج سوسائٹی میں بہت سارے افراد حاجیوں کی خدمت بہت مستعدی کے ساتھ اور بہت محنت کے ساتھ، قربانی کے ساتھ کیا کرتے ہیں، لیکن یہ 2 سال کے عرصے میں ہماری حج سوسائٹی کے تقریباً 4 بہت محنتی فعال افراد جو حاجیوں کی خدمت میں سرگرم رہتے تھے، وہ اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں۔ تو سوسائٹی کے تمام ہی افراد، ان میں سے سب سے پہلے ہمارے حج سوسائٹی کے سرگرم رکن جناب افتخار احمد صاحب، اور دوسرے جناب احمد حسین صاحب، اور تیسرے جو ہے HM اسماعیل صاحب، اور چوتھے جناب اظہر صاحب، یہ سارے کے سارے افراد حاجیوں کی خدمت میں بہت سرگرم رہتے تھے۔ نظام آباد ڈسٹرکٹ حج سوسائٹی ان کے لیے تعزیت پیش کرتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بہترین بدلہ اپنی جانب سے عطا فرمائے۔ اور وہ لوگ جو حاجیوں کی خدمت کیا کرتے تھے، وقف بورڈ کی آمدنی میں اضافے کے لیے مسائی، درگاہ حضرت سعد اللہ حسینی رحمۃ اللہ علیہ انتظامات کے لیے ٹینڈرز کی طلبی۔ تلنگانہ وقف بورڈ کی آمدنی میں اضافے سے متعلق اہم ادارہ درگاہ حضرت سید سعد اللہ حسینی رحمۃ اللہ علیہ بڑا پہاڑ نظام آباد کے انتظامات کے حراج کے سلسلے میں 9 نومبر کو ٹینڈرز طلب کیے گئے ہیں۔ اس درگاہ سے تلنگانہ وقف بورڈ کو دیگر اداروں کے مقابلے سب سے زیادہ آمدنی حاصل ہوتی ہے، اور گزشتہ سال 3 کروڑ 60 لاکھ سے زائد روپے میں ٹینڈر الاٹ کیا گیا تھا۔ کانٹریکٹر کی میعاد کی تکمیل کے موقع پر اس نے 3 ماہ کی توسیع کی درخواست کی اور کہا کہ کورونا وبا کے پیش نظر کافی نقصان ہوا ہے۔ اس معاملے میں کانٹریکٹر نے ہائی کورٹ سے رجوع کیا، جہاں عدالت نے وقف بورڈ کو توسیع سے متعلق درخواست کا جائزہ لینے کی ہدایت دی۔ وقف بورڈ نے اپنے اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے مقررہ مدت میں ٹینڈرز طلب کرنے کا فیصلہ کیا۔ بتایا جاتا ہے کہ سیاسی گوشوں سے بورڈ پر دباؤ بنانے کی کوشش کی گئی کہ کانٹریکٹر کو کسی بھی چارجز کے بغیر 3 ماہ کی توسیع دی جائے۔ بعض گوشوں نے اس اہم درگاہ کے ٹینڈر کا عمل روکنے کی کوشش کی، تاہم صدر نشین وقف بورڈ محمد سلیم نے بورڈ کی آمدنی میں
इजाफे के मकसद के तहत टेंडर्स की तारीख तय की है। 1 साल की मुद्दत के लिए दरगाह शरीफ के तहत तमाम खिदमात की मालियत 3,60,40,00,000 रुपए मुकर्रर की गई। टेंडर्स 9 नवंबर को 1 बजे दिन तक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के दफ्तर में दाखिल किए जा सकते हैं और इसी दिन 3 बजे दिन कुशादगी अमल में आएगी। टेंडर गुजारों को 25 लाख रुपए की रकम का डीडी सबक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वक्फ बोर्ड जमा करना होगा। रकम धरवट के बगैर टेंडर को मुस्तरद कर दिया जाएगा। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की जानिब से जारी करदा टेंडर नोटिस के मुताबिक सबसे ज्यादा बोली देने वाले टेंडर गुजार को टेंडर की 1% रकम टेंडर के अखराजात के तौर पर अंदरून 3 यौम बोर्ड के अकाउंट में जमा करनी होगी। उम्मीद की जा रही है टेंडर मरहले की तकमील से वक्फ बोर्ड को तकरीबन 4 करोड़ तक आमदनी होगी। हजरे अस्वद की मामूल की मरम्मत का काम शुरू। हरमैन शरीफैन इंतजामिया ने कहा है कि हिजरे अस्वद की मामूल की मरम्मत का काम शुरू कर दिया गया है। मीडिया के मुताबिक इंतजामिया के सरबराह शेख डॉक्टर अब्दुल रहमान अल सुदैस ने मरम्मत की हिदायत कर दी है। इंतजामिया ने कहा है कि हिजरे अस्वद की मरम्मत का काम इंतहाई माहिर टीम की जेर निगरानी अंजाम पा रहा है। हिजरे अस्वद की मरम्मत के काम में जदीद तरीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि रिकॉर्ड वक्त काम की तकमील मुमकिन हो सके। इंतजामिया के सरबराह शेख डॉक्टर अब्दुल रहमान अल सुदैस ने कहा कि खादिम हरमैन शरीफैन शाह सुलेमान बिन अब्दुल अजीज और वली है शहजादा मोहम्मद बिन सुलेमान हरमैन शरीफैन की खिदमत को अव्वलीन तरजीह देते हैं। इन्होंने हरमैन के ज़ायरीन के लिए सहूलतें फराहम करने पर सऊदी क़यादत का शुक्रिया अदा किया। नवी पेट मंडल मौजे फतेहनगर के सरपंच आसिफा के वालिद मोहतरम वजीर खान के इंतकाल पर टीआरएस पार्टी के रियासती कायद रामकिशन राव, मंडल टीआरएस पार्टी सदर व निगरानकार नागेश्वर राव ने मुकामी सरपंच के शौहर ताहिर बिन जाफर से मुलाकात करते हुए दिया पुरसा। नवी पेट मंडल मौजे फतेहनगर के सरपंच आसिफा के वालिद मोहतरम वजीर खान का साना इर्तिहाल नासाज तबीयत के बाइस इंतकाल होने पर आज टीआरएस पार्टी के रियासती कायद रामकिशन राव, मंडल टीआरएस पार्टी सदर व निगरानकार नागेश्वर राव और प्रवीण ने मुकामी सरपंच के शौहर टीआरएस पार्टी अखलती मंडल सदर ताहिर बिन जाफर ने मुलाकात करते हुए पुरसा देकर इजहार ताज़ियत पेश की। इस मौके पर इनके साथ एमपीटीसी व टीआरएस पार्टी से वाबस्ता कायदीन व कारकुनान मौजूद थे। शहर में आवारा कुत्तों की कसरत, जिले में जारिया साल 4,432 कुत्ते काटने के वाक़यात। जिले निजामाबाद में जारिया साल अभी तक 4,432 कुत्ते काटने के वाक़यात हो चुके हैं। वाज़ेह है कि 2017 में 4,932 कुत्ते काटने के वाक़यात मंजर-ए-आम पर आए थे। इसी तरह साल 2018 में 6,775 वाक़यात रोनुमा हुए। साल 2019 में 4,751 और साल 2020 में सबसे ज्यादा 7,261 कुत्ता काटने के वाक़यात हुए थे। शहर के तमाम इलाकों में आवारा कुत्तों की कसरत में दोबारा इजाफा हो चुका है। बल्दिया के ओहदेदारों की जिम्मेदारी है कि वो कोई जानलेवा हादसा पेश आने से कबल चौकसी इख्तियार करते हुए आवारा कुत्तों की कसरत की रोकथाम और इन आवारा कुत्तों को शहरी इलाकों से दूर मुंतकिल करने के इक़दाम करे। फुलांग, हताई, आजम रोड, अहमदी बाजार, बोधन रोड, किला रोड, अहमदपुरा कॉलोनी, मालापली, मोहम्मदिया कॉलोनी, मुजाहिद नगर, शांति नगर, बाबन साहब पहाड़ी, असद बाबा नगर, खुजा कॉलोनी, ऑटो नगर के अलावा चंद्रशेखर कॉलोनी, कोट गली, गंगास्तान, झंडा गली में सड़क पर कुत्तों के झुंड दिखाई दे रहे हैं। साबिक में आवारा कुत्तों के हमले के कई वाक़यात मंजर-ए-आम पर आए हैं, जिसमें ज़ईफ अफराद के अलावा ख़वातीन और बच्चे आवारा कुत्तों के हमले में जख्मी हो चुके हैं। बल्दी के ओहदेदार ख्वाब गफलत से बेदार होते हुए आवारा कुत्तों के खात्मे या नहीं तो शहर से दूर मुंतकिल करने के इक़दाम पर नजर मरकूज करें। रिहायशी इलाकों में आवारा कुत्तों की कसरत से अवाम में खौफ और बरहमी पाई जाती है। मुजरिमों पर तीसरी आंख की नजर, जिले में 1,331, निजामाबाद अर्बन में 546 सीसीटीवी कैमरे मौजूद है। निजामाबाद शहर में 546 सीसीटीवी कैमरे मौजूद है। इसी तरह आर्म में 575, बोधन में 210 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। जिले निजामाबाद में जुमला 1,331 सीसीटीवी कैमरे पुलिस की जानिब से लगाए गए हैं। निजामाबाद अर्बन में मौजूद 546 कैमरों में से 22 कैमरे बारिश के बाइस नाकारा हो चुके हैं। कई माह कबल ही नाकारा हुए इन सीसी कैमरों की मरम्मत कराते हुए दुरुस्त कराना बेहद जरूरी है। अरसापली से बोधन तक ज्यादातर सीसी कैमरे
बड़े नाकारा हो चुके हैं। इसके अलावा शहर के अहम चौराहे कंटेश्वर बाईपास चौरास्ता, देवी रोड, बस स्टैंड, गांधी चौक चौरास्ते पर सीसी कैमरे काम नहीं कर रहे हैं। शहर में जुर्म की वारदातें बढ़ती जा रही हैं। अवाम को पुलिस से मुतालबा है कि शहर और जिले में पुलिस की जानिब से लगाए गए तमाम सीसीटीवी कैमरों को फिर से कारकर्द बनाया जाए ताकि जुर्म के बाद मुजरिमों को पकड़ने में फुटेज से मदद हासिल हो सके। जिले में 1331 सीसीटीवी कैमरों की आंख सबको देख रही है। ज्यादातर केसों में मुजरिमीन का बचना नामुमकिन है। इसके बावजूद मुजरिमों के हौसले बुलंद है। बाइक, ऑटो चोरी के अलावा खुफिया शिकनी की वारदातों में बेहद इजाफा देखा जा रहा है। शहर में दिन दहाड़े मोरम, रेत के अलावा पीडीएस, चावल, गुटखा और गांजे की स्मगलिंग बड़े पैमाने पर अंजाम दी जा रही है। मटका बास अहम शायराओं पर भी मटके की बुकिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस से अवाम का मुतालबा है कि सीसीटीवी कैमरे में मौजूद फुटेज पर 24 घंटे नजर रखते हुए मुजरिमों को सबक सिखाया जाए। कोरोना वैक्सीन के मुतालिक अफवाहों को नजरअंदाज करके हर एक फर्द यकीनी तौर पर कोरोना वैक्सीन की खुराक से इस्तिफादा करने का एमपीडीओ बालाकृष्णा ने किया मुतालबा। रेंजल मंडल की तारबिलोली मौलाली तांडे में घर घर जारी कोरोना वैक्सीनेशन के तरीक़ेकार का एमपीडीओ गोपाल कृष्णा ने जायजा लिया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि गुज़िश्ता हफ्ता क़ब्ल जिले कलेक्टर मौज़े कंदाकुर्ती में जारी कोरोना वैक्सीन के तरीक़ेकार का जायजा लेने के बाद नवंबर 3 तारीख तक मंडल से मुंसलिक मुख्तलिफ मौज़ूआत में 100% कोरोना वैक्सीन की खुराक को मुकम्मल करने की हिदायत देने पर इस वक्त से कोरोना वैक्सीन के मरहले में इजाफा होने का इजहार करते हुए कहा कि तमाम अफराद वैक्सीन के मुतालिक फैलाई जाने वाली अफवाहों पर ध्यान न देकर कोरोना वैक्सीन की खुराक से इस्तिफादा करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में सरपंच सुनीता नरसैया, पंचायत सेक्रेटरी साई बाबा व दीगर ने शिरकत की। గౌరవనీయులు జిల్లా కలెక్టర్ గారి ఆదేశాల మేరకు రెంజల్ మండల్లో వ్యాక్సినేషన్ ప్రోగ్రాం జరుగుతుంది. కలెక్టర్ గారు మొన్న కందకుర్తి వచ్చినప్పటి నుంచి ఇప్పటికీ పుంజుకున్నాయి. ఈరోజు దాంట్లో భాగంగా నేను తాడిబిలోలి గ్రామం రావడం జరిగింది. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి కొన్ని ఎవరికైతే అపోహలు ఉన్నాయో వ్యాక్సినేషన్ మీద చివరికి ఆగిపోయిన వాళ్ళందరినీ కూడా మోటివేట్ చేసుకుంటూ ఈరోజు ఇప్పించడం జరుగుతుంది. नवीपेट मंडल मोकनपल्ली देहात में महकमे फिशर्स के जेर निगरानी हुकूमत तेलंगाना की जानिब से फ्राहम करदा मुफ्त छोटी मछलियों को अवामी नुमाइंदों के हाथों तालाब में इजराई अमल में लाई गई। नवीपेट मंडल मोकनपल्ली देहात में महकमे फिशर्स की जेर निगरानी में हुकूमत तेलंगाना की जानिब से फ्राहम करदा मुफ्त छोटी मछलियों को अवामी नुमाइंदों ने तालाब में इजराई अमल में लाई गई। इस मौके पर दीगर अवामी नुमाइंदों ने खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत के बरसर इख्तिदार पर आने के बाद चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव मुख्तलिफ फलाही प्रोग्राम को अंजाम दे रहे हैं ताकि तमाम तबकों को माशी तौर पर मुस्तहकम किया जा सके। इसी के एक हिस्से के तौर पर माहिगिरों के माली हालात मजबूत बनाने के लिए मुफ्त छोटे मछलियों की फ्राहमी अमल में लाने के साथ साथ शिप किट भी हवाले करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में सरपंच राजेश्वर सुधाकर, एमपीडीओ जनार्दन, टीआरएस पार्टी सदर व निगरानकार नागेश्वर राव, प्रवीण, नारायण स्वामी, सतीश, मलेश व दीगर ने शिरकत की। చేప పిల్లలు డెవలప్ చేసుకొని మత్స్యకారులు అభివృద్ధి చెందాలని చెప్పేసి టీఆర్ఎస్ గవర్నమెంట్ అన్ని రంగాల్లో ముందుకు పోతుంది కాబట్టి అన్ని కులాలని మతాలని ప్రోత్సహిస్తూ ఎంకరేజ్ చేస్తుంది కాబట్టి దాన్ని ప్రత్యేకంగా కేసీఆర్కు ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తాను. జై तेलंगाना में 3,854 करोड़ रुपए जीएसटी वसूल, गुज़िश्ता साल के बनिस्बत 14% इजाफा, मरकजी महकमे फाइनेंस का इंकशाफ। जीएसटी की वसूली में रियासत तेलंगाना ने फिर एक मरतबा बेहतर मुजाहिरा किया है। गुज़िश्ता साल के बनिस्बत 14% की तरक्की हुई है। गुज़िश्ता साल अक्टूबर में रियासत में 3,383 करोड़ रुपए जीएसटी वसूल हुआ था। जारिया साल अक्टूबर में 3,854 करोड़ रुपए वसूल हुए हैं। मरकजी महकमे फाइनेंस ने पीर को जारी करदा आदादोशुमार के मुताबिक नए टैक्स निजाम के आगाज से मुसलसल दूसरी मरतबा मुल्क में टैक्स वसूली में इजाफा हुआ है। कोरोना बहरान से तिजारत और खिदमात के शोबे आहिस्ता आहिस्ता बहाल हो रहे हैं, जिससे जीएसटी की वसूली में जबरदस्त इजाफा हुआ है। मुल्क में मुसलसल 4 माह के दौरान लाखों करोड़ रुपए वसूल हुए। जीएसटी की अमलावरी के बाद मुसलसल दूसरी मरतबा ज्यादा आमदनी वसूल हुई है। माह अक्टूबर में 1,30,127 करोड़ रुपए जीएसटी वसूल होने का मरकजी महकमे फाइनेंस ने इंकशाफ किया। इसमें मरकज की हिस्सेदारी 23,861 करोड़ रुपए है। रियासतों की हिस्सेदारी 30,421 करोड़ रुपए है। मुश्तरका जीएसटी के तहत 67,361 करोड़ अशिया की दरामद पर
32,998 करोड़ रुपए मिलाकर सीज की सूरत में 8,484 करोड़ अशिया की दरामद मिलाकर 699 करोड़ रुपए वसूल होने का महकमे फाइनेंस ने ऐलान किया। दिन ब दिन चोरों की हिम्मत में इजाफा। मोपाल मंडल कोलासपुर देहात में एक साथ 6 मकानात में सरखे की वारदात। अवामी बरहमी महकमे पुलिस की जानिब से तहकीकात का आगाज। मोपाल मंडल मौजे कुलासपुर में चोरी की वारदात पेश आई। तफसीलात के मुताबिक सुबह के अवकात काल में सारिकों की जानिब से मुखफल किए हुए 6 मकानात को टारगेट बनाकर रात के अवकात काल में निशानदही किए हुए घर में दाखिल होकर तकरीबन 22 तोले सोना, 6 लाख नकद रकम और 10 तोले चांदी का सरखा करने की हासिल करदा इत्तला पर सीआई रवि कुमार व एसआई साई रेड्डी फौरी मौके वारदात पर पहुंचकर सरखे किए हुए मकानात में टीम के जरिए तहकीकात करने का इंकशाफ किया। సునీతోళ్ళ ఇంట్లో దొంగలు పడ్డారు. మా బిడ్డనే 22 తులాల బంగారం పోయింది, 6 లక్షల రూపాయలు పోయినాయి. మా అక్కది 2 తులాల పడిగలు 20,000 రూపాయలు. పక్కోళ్ళ ఇండ్లల్లో కొన్ని పైసలు పోయినాయి. 6 ఇండ్లు మొత్తం, అందులో కొన్ని డబ్బులు పోయినాయి, निम्स को 4,000 बिस्तरों वाला दवाखाना बनाने हुकूमत का मंसूबा। नई इमारत में इजाफी शोबेजात। इलाज व मुआलजे की सहूलत फराहम करने वाला रियासत तेलंगाना के एक बड़े दवाखाने हैदराबाद में मौजूद निम्स इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस निम्स में बिस्तरों की तादाद में इजाफा करने और इसके मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने और इसे वसअत देने के लिए हुकूमत की जानिब से इक़दाम किए जा रहे हैं। तरक्की देने के इस प्रोग्राम के सिलसिले में निम्स, जिसमें फिलवक़्त तकरीबन 1,500 बेड्स है, एक 4,000 बिस्तरों वाला दवाखाना बन जाएगा। चूँकि इस दवाखाने में मरीजों के शरीक होने में इजाफा हो रहा है और इसमें मजीद चंद शोबेजात और इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत महसूस की जा रही है, इसीलिए ओहदेदारों ने इस हॉस्पिटल को वसअत देने का फैसला किया है। टास तेलंगाना ओपन स्कूल में दाखिले की 15 नवंबर आखिरी तारीख। ओपन स्कूल एसएससी और इंटरमीडिएट में दाखिले के ख्वाहिशमंद तलबा व तालिबात को किसी वजह तालीम हासिल नहीं किए हो या मदरसे में तालीम हासिल करने वाले आलिम हाफिज हजरात के लिए ये बेहतरीन मौका है। दाखिले के लिए उम्र 15 साल तक 40 है। दाखिले के लिए जरूरी इंसदाद, जिनमें टीसी, रिकॉर्ड चेक, बर्थ सर्टिफिकेट में से कोई एक होना लाजमी है। इसके अलावा आधार कार्ड, 2 अदद पासपोर्ट साइज फोटोज जरूरी है। इन्होंने कहा कि टास्क तेलंगाना ओपन स्कूल से एसएससी और इंटरमीडिएट जारिया तालीमी साल 2021-22 में दाखिले के लिए 15 नवंबर 2021 आखिरी तारीख मुकर्रर की गई है। ख्वाहिशमंद तलबा व तालिबात सेल नंबर 9849930516 पर रब्त पैदा कर सकते हैं। भीमगल मंडल के कुत्ता टांडे ग्राम पंचायत में मजकूर सोसाइटी के जेर निगरानी क़याम अमल में लाए गए धान खरीदारी मराकज़ का मुकामी सरपंच बदावत के हाथों इफ्तिताह अमल में लाया गया। भीमगल मंडल के कोटा टांडा ग्राम पंचायत में मजकूर सोसाइटी के जेर निगरानी में क़याम अमल में लाए गए धान खरीदी सेंटर का मुकामी सरपंच के हाथों इफ्तिताह अमल में लाया गया। इस मौके पर सरपंच ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत के दौर इख्तिदार में किसानों की जानिब से काश्त करदा पैदावार को फरोख्त करने के दौरान होने वाली रुकावट को दूर करने के अलावा मुनासिब कीमत फराहम करने के मकसद के तहत जिले व मंडल से मुंसलिक मौज़ूआत में धान खरीदारी मराकज़ का क़याम अमल में लाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में रायतु बंधु सरदार शर्मा नायक, बालकुंडा सामान्य समिति निगरान कार मेंबर गुन्ना विरेड्डी, चेयरमैन सदर वेंकटेश नायक, सरपंच बदावत व दीगर ने शिरकत की। बोधन के अम्बेडकर चौरास्ते पर दलित SC/ST तहफ़्फ़ुज़ कमेटी के जेर निगरानी में MP D अरविंद की जानिब से दलित तबके के खिलाफ किए गए तौहीन-आमेज़ बयान पर एहतिजाजी धरना मुनक़िद किया गया। बोधन के अम्बेडकर चौरास्ते पर दलित SC/ST तहफ़्फ़ुज़ कमेटी के जेर निगरानी में MP D अरविंद की जानिब से दलित तबके के खिलाफ तौहीन-आमेज़ बयान पर एहतिजाजी धरना मुनक़िद किया गया। इस मौके पर दलित संगम से वाबस्ता कायदी ने कहा कि MP D अरविंद हैदराबाद की गुड़ा जेल के पास बतारीख 29 अक्टूबर 2021 को SC/ST एक्ट क़वानीन पर दिए गए तंज़िया बयान को मद्देनजर रखकर सख्त कानूनी कार्रवाई करने के लिए बोधन के ACP को दरख्वास्त पेश की और इन्होंने मज़ीद कहा कि दलित तबके के खिलाफ तौहीन-आमेज़ बयान देने के अलावा SC/ST एट्रॉसिटी कानून को लोटा पीस कह के गलती करने पर इनका अलामती पुतला नजरातेश किया गया। इसी तरह से दस्तूर में मौजूद हुकूक और SC/ST एट्रॉसिटी कानून पर नाजिब अल्फाज अदा करने वाले MP D अरविंद को फौरी माफी न मांगने की सूरत में इनके घर का घेराव करने का इंतबा दिया। SC/ST హక్కుల పరిరక్షణ కమిటీ బోధన్ డివిజన్ ఆధ్వర్యంలో ఈరోజు MP అరవింద్ నిజామాబాద్ జిల్లా MP అరవింద్
చేసినటువంటి అనుచిత వ్యాఖ్యలకు ఏళ్ళకు మాట్లాడేందుకు బోధన్ డివిజన్ కమిటీ ఆధ్వర్యంలో ఈరోజు నిరసన కార్యక్రమం అతని దిష్టి బొమ్మ దహనం చేయడం జరిగింది. दीपावली त्यौहार के पेश नजर जिले निजामाबाद के मार्केट में काफी हलचल नजर आई। दीपावली त्यौहार के पेश नज़र ज़िले निज़ामाबाद के मार्केट में काफ़ी हलचल नजर आई। ज़िले में मुक़ीम अवाम दीपावली त्यौहार को मद्देनजर रखते हुए चीज़ों व अशिया के लिए मार्केट का रुख करने पर काफ़ी गहमा गहमी देखी गई और बाजार में मौजूद फूलों व दिए हासिल करने के लिए अवाम एक दूसरे पर सबकत हासिल करते हुए नजर आ रहे थे, जिसके बाद ट्रैफिक का मसला पेश आया और इसी तरह से अवाम पॉलिटेक्निक के मैदान में मौजूद पटाखा जात की दुकानात में अवाम की कसीर तादाद नजर आई। ఒక బుట్టి పేని తీసుకొస్తే ట్రాన్స్పోర్టింగ్ ఛార్జ్ హైదరాబాద్ నుంచి నిజామాబాద్ అంటే 100 రూపాయలు బుట్టి పేని, అక్కడ 20 రూపాయలు లేబర్ ఛార్జ్, ఇక్కడ తీసుకొస్తే 30 రూపాయలు 150 రూపాయలు అవి అంటే ఒక క్వింటల్కి 600-700 రూపాయలు అవి ట్రాన్స్పోర్టింగ్ ఎక్కువ ఉన్నాయి. పెట్రోల్ రేట్ పెరిగింది, నూనె రేట్ పెరిగింది, డాల్డా రేట్ పెరిగింది, పేని కూడా అంటే గిరాకీ ఏమంటుందో 100 రూపాయల కిలో. कोविड कहर के दौरान खुसूसी खिदमात अंजाम देने पर निजामाबाद IMA को रियासती सतह पर बेहतरीन सर्विस अवार्ड काबिल फख्र होने का ZP चेयरमैन विठल राव ने किया इजहार। हैदराबाद शहर में मुनक़िदा इंडियन मेडिकल एसोसिएशन अवार्ड की तक़रीब में निजामाबाद IMA को रियासती सतह पर ऑलराउंडर बेस्ट ब्रांच का अवार्ड हासिल हुआ। डॉक्टर जीवन राव को बेहतरीन सदारती इम्तियाजी अवार्ड और डॉक्टर विशाल को बेहतरीन जनरल सेक्रेटरी के तौर पर मुमताज अवार्ड हासिल होने पर ZP चेयरमैन विठल राव ने जिले के लिए काबिल फख्र होने का इजहार करते हुए डॉक्टर जीवन राव और डॉक्टर विशाल की शालपोशी करते हुए शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाई गई। జిల్లా 30-31 తారీఖు జరిగిన ఆ మహాసభలో మన జిల్లా IMAకు ఆల్రౌండ్ అవార్డు రావడము, అట్లాగే డాక్టర్ టి జీవన్ రావు గారికి మరి గతంలో 2 ఇయర్స్ చేసిన సేవలకు అధ్యక్ష విశిష్ట అవార్డు రావడము, అట్లాగే డాక్టర్ ఆకల విశాల్ గారికి విశిష్ట అవార్డు ప్రధాన కార్యదర్శిగా విశిష్ట అవార్డు రావడము, మరి వారికి ఈ సందర్భంగా ఫస్ట్ టైం మరి నిజామాబాద్ జిల్లాకు ఈ అవార్డ్స్ రావడము, నేను వారికి జిల్లా తరఫున మా తరఫున మా జడిపి తరఫున శుభాకాంక్షలు। दीपावली त्यौहार के पेश नजर फूलों की डिमांड में इजाफा, खासकर बंती के फूल 60 था 100 रुपए किलो फरोख्त होने का भारत फ्लावर मर्चेंट के मालिक शरीफ ने किया इजहार। निजामाबाद कामरेड्डी अजला में दीपावली त्यौहार के पेश नज़र फूलों की दुकानात पर काफ़ी अवाम की हलचल नजर आई। दीपावली त्यौहार को मद्देनजर रखते हुए अवाम अपने मकानात व दुकानात को फूलों से सजाते हैं, जिससे जिले में वाक़े फूलों की दुकान पर अवाम की कसीर तादाद नजर आई। और इसी तरह से शहर में वाक़े भारत फ्लावर मर्चेंट के मालिक शरीफ ने दीपावली त्यौहार को मद्देनजर रखते हुए फूलों को होलसेल फरोख्त करने का इजहार किया। और इस साल कोरोना वबा में कमी के बाइस अवाम दीपावली त्यौहार में कोविड-19 से वाबस्ता उसूल और ज़ाबित पर मुकम्मल तौर पर अमलावरी करते हुए दीपावली त्यौहार को खुशी के साथ मनाने का फूलों के ताजिर ने किया इजहार। इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। आज़मीन हज 2022 के लिए डिस्ट्रिक्ट हज सोसाइटी निजामाबाद की जानिब से खिदमात का आगाज, आज़मीन हज से इस्तिफादे की अपील। CMRF गुरबा के लिए एक नेमत, आर्मू में मिले वो PUC कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी के हाथों इस्तीफादा कुननगान में किए गए चेक्स की तकसीम। चोरों की हिम्मत में इजाफा, एक ही वक्त मुक्काल मंडल में 6 घरों में चोरी, 6 लाख नकद, 22 तोले सोना, 10 तोले चांदी लेकर चोर वे फरार। महकमे पुलिस की जानिब से तहकीकात का आगाज। ROFR क़वानीन पर अमल करते हुए क़बायली किसानों के मसाइल को हल किया जाए, जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी ने ओहदेदारों को दी हिदायत। दरगाह हज़रत सादुल्लाह हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह बड़ा पहाड़ इंतजामात के लिए टेंडर्स का फिर ऐलान।
तेलंगाना ओपन स्कूल में दाखिले की 15 नवंबर आखिरी तारीख, तलबा से इस्तीफादे की अपील। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।